you all allow me, Okay. then can we wait Yes, for sir, sir. 1 minute? Yes, sure, sir. Okay, Yes, sir. thank you all Sure, of you. sir. Definitely, sir. Thank you all of you for waiting. So there are 40 participants now, 41. अच्छा ये बताइए मुझे, जब तक बात करते हैं चलो वन बाई वन, 1-2 मिनट Good आपको morning, मैंने, sir. हाँ वेरी गुड मॉर्निंग बेटे, वेरी गुड मॉर्निंग। जो अभी आपको मैंने पढ़ाया, जस्ट आई हैव रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ +2 स्टैंडर्ड, because it is the basic, and we have to use these concepts throughout the relativity. So I have revised the concept of your previous classes, like motion, the Newton's law of motion, and what is the limitation of Newton's law of motion. Once again, we will see how the Newtonian mechanics is not able to explain some of the experimental results. देखिए एक बड़ी बेसिक सी बात है कि फिजिक्स या साइंस जो डेवलप होती है, या इवन टेक्नोलॉजी, तो लोग रिसर्च करते हैं। वो कैसे करते हैं कि जो प्रॉब्लम हमारे पास चली हुई है, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए दो तरह से हम उसको करते हैं। एक तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना को ऑब्जर्व किया गया, एंड लेटर ऑन सम थियरी हैज बीन प्रपोज्ड to explain these experimental results. So this is the order, and order may also reverse order may also be there, that first theory has been proposed. First theory has been proposed, and after that some experimental arrangement has been made to confirm the theoretical result. So either we can confirm the theoretical results by experiment, or the experimental results by some theories, well-defined theories which are very well known from the previous knowledge. So this is the order of developing the science. Are you agree with this statement? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Good. तो इस दोनों में अगर आप देखें तो अब तक की जितनी भी आपने 12th तक पढ़ा है, then you can go through the different topics, and you can search the different topics of your previous classes, and you will find that whatever I am saying, that experimental results has been explained on the basis of some theories, by proposing some theories, and theoretical results are explained by or confirmed by some experiment. Theoretical results are confirmed by some experimental releases or some experiment. So you can go, if you go to the, I am taking an example right now, Ohm's law. Everyone know Ohm's law. V is equals to IR, the formulated form of the Ohm's law. V is equals to IR. So everyone knows what is the Ohm's law. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए एक्सपेरिमेंट, ओम ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया था, एंड यू ऑल आर अवेयर विद दैट एक्सपेरिमेंट, एंड देयर इज सम रेजिस्टेंस एंड सम लोड एंड वोल्टमीटर एंड अमीटर एंड द बैटरी, एंड ही स्टार्टेड टू नोट डाउन सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एंड वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप उसने नोट किया, एंड ही फाउंड कि वोल्टेज और करंट में एक लीनियर रिलेशनशिप है। देयर इज अ relation when we plot the graph between the voltage and current, then it comes out to be a straight line. तो उसने ये बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में, और इसको बाद में फिर थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया गया, इसकी थियरी डेवलप की गई। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी एक दी गई। फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी भी आपने 12th में पढ़ी होगी। ड्रूड एंड लॉरेंज was the scientist who had given this theory, and on the basis of this free electron theory we can derive the Ohm's law. Are you aware? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं बेटा, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 12th में आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी मेटल्स की फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो कि ड्रूड एंड लॉरेंज ने दी थी,
उसमें ये बताया कि मॉड्यूल में क्या है? रजनीश गौतम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ रजनीश। हाँ, तो free electron theory tells us that the electrons are free to move within the metal. Rajneesh, once again you are unmuted. Rajneesh, mute yourself, beta. So, free electron theory tells us that electrons are free to move within the metal, and on the basis of this free electron theory, the Ohm's law has been derived. In +2, you have done this exercise, and this theory explains the results of Ohm's law, or Ohm's experimental results are explained on the basis of this theory, that is the free electron theory. तो इसका ये मतलब हुआ कि थियरी से हम एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट से थियरी को कंफर्म करते हैं, अगर नट सेल में मैं बात करूं तो। आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So this will be analyzed throughout the physics. जब भी हम पढ़ेंगे यूनिट्स को, जब भी हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे, then consider either it is a theoretical aspect or the theoretical experimental aspect. So keep in mind always that is it experimental or it is theoretical, what we are trying to solve. If we are trying to solve, or we can basically try to solve experimental results on the basis of theory, and we can confirm the theoretical results by the experiment. So this concept should be clear every time when you study a topic. Okay, beta? Okay, sir. Okay, sir. Okay, so now, हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि थियरी, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो थियरी और एक्सपेरिमेंट, थियरिटिकल हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यानी हम थियरी से एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट से थियरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये टॉपिक, ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए आपके उस वक्त ना, ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगा, तो आपको अच्छे से समझ आएंगी चीजें। और Yes, sir. now let me share something, and I am going to the last topic which we have left, that is the frame of reference or type of frame of reference, that is inertial and non-inertial frame of reference, right? Yes, sir. लास्ट लेक्चर में हमने इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम को स्टडी किया था, तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम आज करने, सॉरी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स पे मैंने छोड़ा था, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now now the blank sheet is visible for all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is visible. Okay, fine. Yes, sir. So let me start. So today is 25th now, 25th, Yes, sir, 11, 2020. Okay, so we'll start 25th, sir. yeah, frame of reference. So take your pen and notebook and start to write frame of reference. So frame of reference I have already discussed. So I'm right now I'm once again repeating the frame of reference. Frame of reference is nothing. It is a coordinate system related to which we can specify the motion or position of an object. It's called frame of reference. तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच करते हैं और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यानी कि उस ऑब्जेक्ट को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ट्रीट करते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन द लास्ट लेक्चर अ लॉट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So there are two kinds or two types of frame of reference. One is the inertial and another is non-inertial. So there are two kinds. There are
two types of frames of reference. ठीक है बेटा. Number 1, the inertial frame of reference, and number 2, the non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. Is it visible for all of you what I am writing? Yes, sir. Yes, It's sir. very visible. It's visual. And it is the correct way, or it is the good way to present the lecture, or would you like to suggest something else? No, sir, it is better. No, sir, it is best. Okay, fine. So now we will go to the number 1, the inertial frame of reference. Okay, inertial frame of reference. So inertial frame of reference क्या होते हैं? We have studied the law of inertia. So inertial frames are those frame of reference in which the Newton's first law is valid or holds good. So the frame of reference, you can write the definition. The frame of reference in which the Newton's first law, or Newton's law of inertia, in which the Newton's law of inertia holds good. Holds good का मतलब valid है. Holds good are called inertial frames of reference. You all are noting? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir, we are noted. Okay, beta. Okay, very good. Sir, we are very not good. sorted. Okay, very good. So always keep a pen and notebook along with you, so you can note down each and everything. Next time when we will move towards the theory of relativity and the other topic of the syllabus, then we will have a long derivation. So don't worry about and don't bother about the long derivation. We can do. Mute yourself. Tushar Singh, mute yourself. Good. Okay. So inertial frame. Now I have written down the definition. So what is the meaning of this? We will elaborate more this concept. Newton's law of inertia holds good. Meaning कि Newton's law of inertia valid है. Newton's law of inertia क्या था? Newton's law of inertia था कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. Right? Yes, sir. So, Right, sir. Yes, sir. So, yeah. So this definition will also be applicable over here. That is, कोई भी फ्रेम है, उस फ्रेम में अगर हम फोर्स नहीं लगाते, उस फ्रेम पे कोई फोर्स नहीं लगाते, तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि द फ्रेम विच आर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड or constant velocity, not with speed, velocity is much better. So frame of reference which are at rest or moving with a constant velocity are called the inertial frame. So I can write another definition in another word. The frames of reference which are at rest
or moving with constant velocity are called inertial frame. So this is the another way to represent or to explain the inertial frame of reference. Now we can take another way. अगर मान लीजिए ऐसा है जो रेस्ट में, वो रेस्ट में यानी कि रेस्ट में है कोई फ्रेम, या फिर वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है। इसका दूसरा मीनिंग ये भी कहते हैं हम कि जो इनर फ्रेम एक्सीलरेटेड है, नॉन एक्सीलरेटेड सॉरी, द फ्रेम व्हिच आर unaccelerated are called the, so we can write another definition, the unaccelerated frames. The unaccelerated frames of reference are called the inertial frame, are called the inertial frame of reference. Frames of reference. ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। मैंने आई हैव एक्सप्लेन दिस लॉ इन दिस टाइप ऑफ फ्रेम by 3 different ways. The same thing is there. I have already told you that the main concept is nothing. It is the unaccelerated frame of reference, with the frames of reference which are at rest or moving with constant velocity. They are called as inertial. अब इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है ना, आप देखें अगर if you go around yourself, around you, then you will find there are several objects, and these objects can be treated as inertial or non-inertial frames. Either one of them, कोई हो सकता है, वो inertial भी हो सकता है, non-inertial भी हो सकता है। तो अगर हम अपने अराउंड सभी ऑब्जेक्ट्स को देखें तो वो ऑब्जेक्ट inertial और non-inertial फ्रेम की तरह से ट्रीट कर सकते हैं उनको। तो inertial कब ट्रीट करेंगे? यदि ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है। दैट इज यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है विद मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देयर इज नो एक्सीलरेशन, therefore we can say that is if the acceleration of the object or the frame, acceleration a is equals to 0 for inertial frame of reference. So for inertial frame क्या होगा? inertial फ्रेम के लिए एक्सीलरेशन 0 होगा। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आई कि नहीं? यहां तक कोई क्वेरी है तो बताइए। You have any problem? Then tell me. No, sir. No, sir. Is it clear? Sir, repeat, sir. Yes, sir. बेटा Definitely, sir. ये क्लियर हो गया कि नहीं? मैंने जो इनर्शियल फ्रेम बताया, एक बार कोई पूछ रहा है रिपीट करने के लिए, कौन है बेटा? नाम बताइए अपना। रूपेश। बेटा क्या बात नहीं समझ नहीं आ रही है या रिपीट करना है मेरे को? जस्ट सर एक बार रिपीट करिए, थोड़ा क्लियर क्या बात? अच्छा, क्लियर मैं कर रहा हूँ एक बार। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आया तो इनर्शियल समझ आएगा, इनर्शियल आया समझ तो नॉन इनर्शियल आएगा, और जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल नॉन इनर्शियल समझ आएंगे तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी समझ आएगी, अदरवाइज तो फिर थियरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रॉब्लम होगी। ठीक है? गिरेगा अभी गिरेगा। शिखा मिश्रा प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा। शिखा मिश्रा म्यूट योरसेल्फ। तो देखिए, आप लोग थोड़ा ध्यान रखें इस बात का, अगर गलती से अनम्यूट हो जाते हैं तो म्यूट कर लें उसको प्लीज ना। मुझे नाम देखना पड़ता है तो बार बार तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और टाइम वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, ना। तो मैं आई एम रिपीटिंग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा? कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट ही होता है। जैसे हमने मोशन की बात शुरू की थी, तो मोशन की बात से शुरू करें तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या रेस्ट में, ये कैसे तय करेंगे? कि किसी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। जैसे कि अगर कार रोड पे मूव कर रही है
if the car is moving on the road और एक आदमी रोड के बाहर खड़ा हुआ है ना, तो जो रोड के बाहर खड़ा हुआ है वो मूविंग कार को अगर देखेगा तो उसको मोशन में दिखेगी वो कार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जर्वर खड़ा है ना, जो रोड पे खड़ा है रोड के बाहर, वो ऑब्जर्वर अपने रिस्पेक्ट में उस कार को देख रहा है, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहा है, रोड के रिस्पेक्ट में देख रहा है। देन अर्थ के रिस्पेक्ट में वो कार मोशन में है। लेकिन अगर हम इसी कार को, कार में जो बैठा हुआ आदमी है उसके रिस्पेक्ट में देखें कि कार की जैसे सीट पे बैठा हुआ पर्सन है, उस ऑब्जर्वर वो है, तो वो अगर अपनी सीट के रिस्पेक्ट में कार को देखता है तो उसको तो रेस्ट नहीं दिखेगी ना, बाहर नहीं देख रहा है किसी और के, क्योंकि सीट कार में ही रहती है हमेशा, वो आदमी भी कार में ही बैठा है। मूव करने के बाद आधे घंटे बाद भी जहाँ पे मतलब आदमी बैठा हुआ था इस कार में वही बैठा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि कार उस पर्सन के और ऑब्जर्वर के जो इनसाइड द कार है उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर बाहर है उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ रिलेटिव मोशन। एग्री विद दिस बेटा? यस सर। अब बात आती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें क्या हुआ कि जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को देखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को देखते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, और जिसको देखते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा लिखना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो देखो जैसे मैंने ये कहा कि ये एक रोड है और इस पे कार मोशन में है, ठीक है, ये कार मोशन में है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये ऑब्जर्वर अगर इसको देखता है इस कार को, तो कार ये मोशन में इस तरह से है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में, अपने रिस्पेक्ट में ये देख रहा है यहाँ तक, तो ये इसकी पोजीशन होगी। लेकिन टाइम के साथ इसकी पोजीशन क्या हो रही है, बदल रही है, टाइम के साथ ये अलग अलग पोजीशन पे पहुंच रही है कार, है ना। तो इसका मतलब हुआ ये मोशन में हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। लेकिन जब कार में बैठा हुआ पैसेंजर देखेगा, इसको देखे ऑब्जर्वर को, तो ये पीछे जाता हुआ दिखेगा। इस पर भी अभी बात करेंगे हम। तो जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देते हैं, यानी कि किस रिस्पेक्ट में हम मोशन को देख रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर ये है, ये ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर अपने रिस्पेक्ट में कार को देखता है, देन दिस विल बी ऑब्जेक्ट। जो कार जिसको देख रहे हैं वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, और जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वी आर सीइंग दी कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, सो दिस विल बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर देंगे बेटा। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब एक कोऑर्डिनेट मैथमेटिकली एक रिप्रेजेंट करने के लिए, अब ऐसा तो नहीं कार और ऑब्जर्वर हम बार बार बनाएंगे, है ना। तो मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए व्हाट वी विल डू दैट वी अटैच अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, वी अटैच अ कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर से हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दिया, ये O हो गया, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट, एंड दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई बेटा सबको? रूपेश? यस सर। यस सर। रूपेश Yes, sir. यस सर, समझ आ गया। वेरी गुड। Yes, अब sir. देखिए, यस सर, आई एम देयर। ठीक है बेटा, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, यहीं पे मेरे से आप कितना भी पूछ लीजिएगा। आई नेवर बी पजल्ड और एंग्री एंड सो ऑन, है ना, क्योंकि जितना आप ये क्लियर कर लेंगे उतना आगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ आएगी। अगर आपने यहाँ पे जरा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं समझ आएगी। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर द फुल यूनिट विल नॉट बी अंडरस्टूड if something is lagging in these basic concepts. So you have to learn these basic concepts first. Okay beta? एक्सक्यूज मी सर। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ ऑब्जर्वर का ही देखा जाएगा कि ऑब्जेक्ट का भी देखा जाएगा? देखिए आप इनमें दोनों में क्लियर करिए डिफरेंस। ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का मतलब देखने वाला, तो जो देख रहा है उसके रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, इस अपने रिस्पेक्ट में देख रहा है ये ना। तो जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो तो कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ आई? यस सर। जिसको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं हम, कार को देख रहे हैं ना, यस सर। तो कार विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर, इट्स क्लियर। अब मैं इसको उल्टा कर दूं, अब रिवर्स केस पे मैं जाता हूं। मैं कार में बैठा हुआ हूं
और मैं देख रहा हूं इस ऑब्जर्वर को, ठीक है। आई एम सिटिंग ऑन द कार में बैठा हूं और देख रहा हूं किसको, इस ऑब्जर्वर को। तो अब ऑब्जर्वर तो ये है बेसिकली, अब इस केस में ये ऑब्जर्वर होगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये ध्यान रखना है, जिसको देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट, और जहां से देख रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर कहां पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन पे। ऑलवेज वी पुट द ऑब्जर्वर एट द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जिसको देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट? No, sir. No, sir. नो सर। ओके बेटा, फाइन। नाउ कम टू द इनर्शियल। अब देखिए आप, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है भाई। देखो ये ऑब्जेक्ट, जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ ऑब्जर्वर मान लीजिए। यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और मोर क्लियर हो जाएगा, इट विल मोर क्लियर। आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। देयर इज अ ट्री, ओके, and observer is just sitting just below the tree. Once again a car is moving and passenger is sitting in the car. तो ये ऑब्जर्वर इस ट्री के नीचे बैठा है, ट्री के रिस्पेक्ट में देख रहा है। तो ट्री भी तो वैसे देखें, अगर हम अभी कौन किसको देख रहा है ये नहीं बात कर रहे अभी हम। अभी जस्ट ये सिचुएशन है कि एक ट्री है और एक कार है, तो दोनों तो ऑब्जेक्ट ही है ना एक तरह से। इस फिजिकल वर्ल्ड के दो ऑब्जेक्ट है कि दो, these are the two things. Is it clear? यस सर। Yes, sir. अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी अगर मैं इस ट्री के रिस्पेक्ट में कार की पोजीशन को मेजर करूं, अब मैं ऑब्जर्वर कहाँ पे, ट्री के नीचे है, यहाँ ये ओरिजिन है, ठीक है। इसकी पोजीशन मैंने मेजर की, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन मेजर की। तो इसकी पोजीशन मेजर करने के लिए देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये एक्स, वाई इधर आएगा और जेड आएगा, है ना, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको एक्स और वाई और जेड कोऑर्डिनेट मैथमेटिकली कैसे इसको हम प्लॉट करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकली कैसे ट्रीट करेंगे वो देखना है ना। तो इस ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट मान लो एक्स आता है, एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स है, ये एक्स, वाई एंड जेड, ये ओरिजिन हो गया हमारा। तो इसके रिस्पेक्ट में जब मेजर करते हैं इस तार की पोजीशन, तो एक्स आती है, एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग, वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग वाई आता है, और जेड आता है। और किस टाइम पे मेजर करना है वो टाइम कोऑर्डिनेट हमारा टी आता है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. यस सर। तो हम करेंगे क्या, देखिए बार बार, ये जो फ्रेम है, जो ट्री के रिस्पेक्ट में हमने कार को, ये कार है हमारा, और कार को की पोजीशन मेजर कर रहे हैं। तो ट्री के रिस्पेक्ट में जब कार की पोजीशन मेजर करेंगे तो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट हमने लिख ली होगी। एक्स के अलोंग एक्स आता है, वाई के अलोंग वाई आता है, और जेड के अलोंग जेड, और किस टाइम पे करना है, दैट टाइम इंटरवल इज टी, है ना। तो वो टाइम इंटरवल, जैसे कि मान लीजिए पहले इस पे था और यहाँ से मूव करके ओ पे था, ओ से ओ डैश पे आ जाता है। ओ डैश इज द पोजीशन ऑफ दिस न्यू पोजीशन ऑफ दिस कार। तो कार ट्रेवल करके कहाँ से आई, ओ से ओ डैश पे आ गई। तो उसमें कितना टाइम लगा, दैट टाइम इंटरवल इज टी। दिस इज नॉट द टाइम कि कितना बज रहा है, वो टाइम नहीं है ये, राइट। इट इज द टाइम इंटरवल। कौन सा टाइम इंटरवल है, इनिशियल पोजीशन कार की क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है। ठीक है बेटे? Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया हमारे पास में, जो कि एक्स वाई जेड वाला, इसको हमने लिखा हुआ है ओ वाला, इसका ओरिजिन ओ है, ठीक है। और एक हमारा ये जो कार है, ये ऑब्जेक्ट। अब इस केस में ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अब देखिए ये ट्री जो है रेस्ट में है ना, ट्री रेस्ट में है किसके, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर अ टाइम बीइंग, जब ऑब्जर्वर ट्री के पास ही है, अर्थ पे है, तब इसको हम ले सकते हैं कि ये जो कार है वो मोशन में है, तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट में है, तो इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा फॉर टाइम बीइंग। ठीक है, Yes, सर एक बार Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बात ये कह रहा हूं कि जो ट्री है वो ट्री तो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, है कि नहीं? यस सर। तो ट्री जो Yes, होगा sir. वो इनर्शियल Yes, sir. फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा टू ट्रीट दिस द मोशन ऑफ कार। कार को ट्रीट करने के लिए कैसा होगा, ये रेस्ट में हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कार भी कैसी होनी चाहिए, कार भी यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में होनी चाहिए। तो इसको क्या करते हैं हम, कार को जो ओ डैश है इसको भी हम एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर देते हैं टू एनालाइज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे, एक कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ अटैच कर दिया, देखो इस तरह से, और ये ओ डैश ले लिया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, और ये जेड डैश हो गया। ठीक है बेटा, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने अटैच कर दिए। ठीक है, चलिए यस सर। Yes, sir. दोनों में से ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे हैं, यानी इफ दे आर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट वेलोसिटी, देन वी कॉल देम एज इनर्शियल फ्रेम। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है या फिर कैसा है और रेस्ट में है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, इनर्शियल फ्रेम। ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। और अगर अगर हम इसको कहें जैसे मूविंग कार है, मैं इसको भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकता हूं कि नहीं? ले सकते हैं सर। ले सकते हैं। यस सर। कार में बैठा ऑब्जर्वर देखिए ट्री को, और कार एक्सीलरेशन में हो, ये आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और आपने एक्सीलरेटर दबाया हुआ है, यू आर, अगर सर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ट्री को देखेगा, तो ये भी फ्रेम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मोशन में नहीं है तब ये नॉन इनर्शियल हो जाएगा फिर, है ना? ओके सर। यानी कि इसमें इसका एक्सीलरेशन अगर जीरो है तब तो ये इनर्शियल फ्रेम्स होंगे ना, दोनों Yes, फ्रेम sir. इनर्शियल होंगे। यस ठीक है? सर। यस सर। अगर ये इसका एक्सीलरेशन कुछ है देन इट विल बी नॉन इनर्शियल। ओके सर। अब बताओ बात समझ आई कि नहीं, इनर्शियल नॉन इनर्शियल की कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, हमारी सर अर्थ भी तो सर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। कौन बेटा? सर अर्थ अर्थ वी विल डिस्कस लेटर ऑन, अर्थ इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, आई विल डिस्कस इन डिटेल, है ना? इट इज आवर पार्ट एंड इट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इनर्शियल नॉन इनर्शियल से पूछा जाता है कहीं एक बार, अर्थ इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सप्लेन व्हाई, है ना? तो ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, तो इसको हम अभी बाद में लेते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। पहले मैं नॉन इनर्शियल लिखवा Okay, देता sir. हूं। हाँ, बोलो। सर वन टाइम में एक ही का फ्रेम आप रेफरेंस देखा जाएगा कि दोनों का देख सकते हैं? एक का ही देखेंगे बेटा, जिसके रिस्पेक्ट में जिसको देखेंगे बस, ओके सर। उस समय देखेंगे हम। बाकी तो अब जब और आएंगे तो क्लियर होनी चाहिए और, है ना, आगे। बस ये बात समझ में आ जानी चाहिए एक नट सेल में कि जिन फ्रेम का, जिन ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन जीरो है या कि वो, यानी कि वो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है। कांस्टेंट वेलोसिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पीड, वेलोसिटी, तो वो इनर्शियल फ्रेम है, इतनी बात समझ आनी चाहिए। और जिनका एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, जिनका एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, यानी रिटार्डेशन भी हो सकता है उनमें, स्पीड कम हो रही होगी तब भी वो ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम होंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, Yes, नाउ sir. वी शुड राइट द डेफिनेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम लिखे बेटा? यस सर।
Number 2, the non-inertial frame of reference. अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ऑनलाइन आप क्लास कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। यस सर, आ रहा है बहुत सर। अच्छा लग रहा है। सर आ रहा है बहुत सर। अच्छा सर। विद नोट्स आ रहा है। सर लेकिन ऑफलाइन से ज्यादा अच्छी है ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं हम इजीली। शर्माते नहीं है ना बच्चे, शर्माते नहीं है, शर्म नहीं आती, कौन पूछ रहा है? नहीं 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 सर ऐसा यस सर। हाँ ये बात तो है, आप पूछ सकते हैं, यू आर ऑलवेज फ्री। बिल्कुल। और ऑल्सो आई एम वेरी Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर कोई बॉडी जो रिटार्ड कर रही हो कांस्टेंट, तो वो भी इनर्शियल फ्रेम में आएगा ना? कांस्टेंट रिटार्ड कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या समझते हैं आप, मुझे बताइए। मतलब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड मतलब कॉन्स्टेंटली कम हो रही हो। कॉन्स्टेंटली कम हो रही है, इसका मतलब तो हुआ एक्सीलरेशन है ना, नेगेटिव एक्सीलरेशन हुआ ना उसमें, यानी कि रिटार्डेशन है। रिटार्ड करने का मतलब तो रिटार्डेशन है ना, तो रिटार्डेशन है अगर, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्सीलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, यस सर। देन इट शुड बी द नॉन इनर्शियल, राइट? हाँ ओके सर। अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ दी फ्रेम्स आर इनर्शियल, नॉन इनर्शियल है ना। डिफरेंट टाइमिंग पे डिफरेंट सिचुएशन में इनर्शियल हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर द नॉन इनर्शियल, है ना। तो वो अभी जनरल स्टेटमेंट में नहीं दे रहा हूँ, बाद में हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। पूरी यूनिट में यही सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे ना, और डेफिनेटली यू विल एंजॉय। जो आपने 12th में चीजें छोड़ रखी थी, वहां से शुरू होता है अब आगे की बात, है ना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू टू पास अ कमेंट दैट you all are very disciplined, so I am taking the class betterly, and keep it up for the future. Thank you. Then you will थैंक यू सर। okay बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम सर आप भी बहुत Thank you, sir. थैंक यू। सर बहुत अच्छा लगा समझने में। अच्छा चलिए, वीक से ही अच्छी लगी। है बेटा। सर वी आर एंजॉयिंग फिजिक्स सर। Okay, definitely you enjoy. During the introduction of my class, the beginning of my class, I have told you that you will definitely enjoy the physics. यस सर। So come to the non-inertial frame of reference. तो non-inertial frame of reference को लिख लें, definition को। non-inertial frame of reference क्या होगा, आपको आसान हो जाएगा ना लिखना, कि the frames of reference in which the Newton's law of inertia does not hold good. ठीक है, the frame of reference in which the Newton's law of inertia does not hold good. The frames of reference do not hold good, है ना, प्लूरल है ना, do not hold good. Do not hold good are called non-inertial frame. Non-inertial frame. इसका ये मतलब है, दैट इज, इसका मीनिंग हुआ एक्सीलरेशन विल नॉट बी जीरो फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए क्या होगा, एक्सीलरेशन विल नॉट बी जीरो। ओके,
ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, Yes, एग्जाम्पल अगर हम Excuse लिखें। me. हाँ बेटा। सर ये जो एक्सीलरेशन की हम बात करते हैं हमेशा, ये ऑब्जर्वर का ही होता है ना? हाँ, फ्रेम का, जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं किसी चीज को ना। यस सर। है ना? अभी हम इसके बहुत सारी एनालिसिस करेंगे आगे, तो और क्लियर हो जाएगा, तो डोंट वरी। अभी शुरुआत में लगता है, अजीब सा लगता है कि कैसे क्या होगा, देन वी विल मूव इन दी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, देन वी विल लर्न मोर, और कैसे उसको देखते हैं ये बात समझ में आ जाएगी। देखना कैसे है, हमको किसको किसके रिस्पेक्ट में देखना है, ये जो कंफ्यूजन है ना, दैट विल बी मोर क्लियर इन दी नेक्स्ट टॉपिक। ओके ओके। so keep Okay, your sir. interest and definitely you will learn। तो एग्जांपल की अगर बात करें तो देखिए, इनर्शियल फ्रेम से एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि ट्रेन और कार एक्सेट्रा मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई भी ट्रेन और कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। फॉर ऑर्डिनरी पर्पज अर्थ इज आल्सो एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑर्डिनरी पर्पज का मतलब कि यदि ऑब्जर्वर, इफ द ऑब्जर्वर इज ऑन द अर्थ, ऑब्जर्वर कहां पर है, अर्थ पे है, तब उसको हम अर्थ को एज इनर्शियल फ्रेम ट्रीट कर सकते हैं। लिसन टू मी, इफ ऑब्जर्वर इज ऑन द अर्थ, दैट इज वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ कार staying on the earth, then earth can be treated as inertial frame of reference। ठीक है, बात समझ आ गई ना? बाकी नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में जितने भी ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग विद एक्सीलरेशन आर कॉल्ड दी नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, राइट? Yes sir. यस सर। ठीक है बेटे, तो नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अर्थ इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, है ना? उससे पहले मैं अटेंडेंस लेता हूँ, कुछ टाइम बचेगा तो डिस्कस कर लेंगे। और अटेंडेंस को एक बार ही बोले, है ना, ध्यान रखें, एक बार ही बोले। कोई डाउट रहे तो मुझे क्रॉस चेक करें, अदरवाइज बार बार क्रॉस चेक ना करें, उससे कियोस होता है ना। ठीक है, ना कॉल योर अटेंडेंस। राहुल चौधरी, राहुल कुमार सिंह, यस सर। रवि चौधरी, प्रेजेंट सर। एंड देन रोहित पाल, यस सर। प्रेजेंट सर। सॉरी, रोहित पाल प्रेजेंट है ना? यस सर। ठीक है, इसके बाद रोहित राज, Yes sir, Rohit Raj. एंड देन संजीव कुमार कंबोज। संजीव कुमार, संजीव कुमार नहीं है? ओके, नेक्स्ट वन इज सार्थक राघव, Present sir. शनि सिंह, तस्लीम, रुबेर, जुबेर सिद्दीकी, अनमोल कुमार झा, प्रेजेंट सर जुबैर सिद्दीकी। जुबेर सिद्दीकी प्रेजेंट, अनमोल कुमार झा, अनमोल, लवकुश चौधरी, लवकुश, मोहम्मद कैफ, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कैफ प्रेजेंट सर। मोहित यादव। Present sir. सर मोहम्मद का कैफ। बेटा लग गया, एक बार बोल दिया आपने, लग गया अटेंडेंस, है ना? मुझे डाउट होगा मैं पूछ लूंगा, एक बार आपने बोल दिया देन इट इज ओके। मुस्कान पनवार, प्रेजेंट सर। पार्थ सिंह, Yes sir. पीयूष, Present sir. प्रज्वल कुमार मिश्रा। आई थिंक प्रज्वल इज नॉट देयर। प्रज्वल, हेलो सर। सर प्रवल मिश्रा। प्रेजेंट सर। प्रज्वल लिखा हुआ है तो प्रज्वल मिश्रा नहीं है। प्रज्वल कुमार मिश्रा है, CSAIML ब्रांच। यस सर, इस प्रवल में सर। PRAWAL होगा आपका, है सर PRAWAL प्रवल। PRAJWAL लिखा हुआ है प्रज्वल। चलिए मैं नहीं इसको सर। स्पेलिंग चेक कराऊंगा, देखूंगा, ठीक है बेटा? ठीक है सर।
आपकी आईडी बताओ, आईडी कितनी है कॉलेज सर आईडी? CSAIML। नहीं, आईडी कॉलेज की जो आईडी मिली है 200। सर वो चेक करके बताना पड़ेगा सर। 200207। 200 207। यस सर। तो ये कोई और है प्रबल बेटा, ये नहीं है ना। एक मिनट में जरा चेक कर लेता हूँ प्लीज। 207 ना लास्ट में? यस सर, यस सर। 207। और ब्रांच कौन सा बताया बेटा आपने? AIML। आप टीम 2 में ही है ना? यस सर। 200 207 ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ प्रबल मिश्रा, लेकिन ये बाद में आएगा नाम, है ना। 21 सीरियल नंबर है आपका, उस पर आएगा बेटा, है ना ये? अच्छा। है। ये प्रज्वल है, अलग है, ये प्रज्वल कुमार मिश्रा अलग है ना। तुम्हारा 21 पे आता है ना। ठीक है, लग गया अटेंडेंस ना। प्रांजल टिग्गा, प्रांजल टिग्गा। प्रेजेंट सर। ओके। प्रसंग सेठ। देन प्रियांश जैन। यस सर। पुनीत गोयल। प्रेजेंट सर। राहुल कुमार। प्रेजेंट सर। रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। रजनीश गौतम। रजनीश गौतम। रजनीश गौतम प्रेजेंट और एब्सेंट? रंजीत कुमार। रोचक। सर प्रेजेंट सर। रोचक। प्रेजेंट। रोहन शर्मा। रोशन शर्मा। यस सर। लोकुश चौधरी। रोशन शर्मा। रोशन। रोहित कुमार मिश्रा। रोहित शर्मा। रोशन राज। प्रेजेंट सर। रुजुल शर्मा। प्रेजेंट सर। रुजुल शर्मा। शर्मा प्रेजेंट। सर रोशन कुमार। राज प्रेजेंट सर। रोशन राज भी प्रेजेंट लग गया बेटा। सचिन कुमार। प्रेजेंट सर। लग गया बेटा। सचिन श्रीवास्तव। साहिल कुमार। प्रेजेंट सर। संचित वाजपेयी। सौरभ आनंद। प्रेजेंट सर। सौरभ रावत। ठीक है बेटा, सौरभ आनंद प्रेजेंट। लग गया सौरभ आनंद। सौरभ रावत। हेलो सर। हाँ बेटा। अटेंडेंस लगा देते, 1 मिनट रुक जाओ। शिवम भारद्वाज। प्रेजेंट सर। शिवम सिन्हा। प्रेजेंट सर। लोकराज। श्रेष्ठ गुप्ता। प्रेजेंट सर। ओके। शुभम सिंह बिस्ट। प्रेजेंट सर। समर्थ आनंद। सुमन मेहता। नहीं है। सन्नी पटेल। प्रेजेंट सर। पटेल। प्रेजेंट सर। ओके बेटा। शिवम राज अनम्यूट करो अपने आप को। शिवम राज म्यूट करो, सॉरी म्यूट करो। स्वास्तिका मिश्रा। and then तुषार शर्मा। यस सर। उत्कर्ष मान।
वैभव सर खन्ना, स्वास्तिका मिश्रा प्रेजेंट। स्वास्तिका मिश्रा लग गया बेटा। एंड वैभव वैभव खन्ना, विपिन कुमार, विवेक कुमार, यस सर। विपिन की विवेक, विवेक सर, विवेक। और विपिन नहीं है, विवेक सेंगर, सर प्रेजेंट प्रेजेंट सर। विपिन की विवेक सेंगर, विपिन सर। ओके, विवेक सेंगर, नीतीश कुमार कुशवाहा, प्रेजेंट सर। पार्थ भारद्वाज, पार्थ, यस सर, प्रेजेंट सर। प्रांजल, प्रांजल, प्रशांत कुमार सिंह, प्रशांत कुमार सिंह, यस सर। पुरस्कार, पुरस्कार, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, प्रेजेंट सर। पुरुषोत्तम प्रेजेंट। राहुल राहुल शर्मा पुरुषोत्तम सर। लग गया बेटा, पुरुषोत्तम का लग गया। राहुल कृष्णा, राजन कुमार प्रेजेंट सर। राहुल कृष्णा प्रेजेंट सर। लग गया बेटा। राजन कुमार, प्रेजेंट सर। ओके बेटा। ऋषभ मिश्रा, ऋषभ मिश्रा, ऋषभ राज, प्रेजेंट सर। ऋषभ राज। ऋषभ राज, ऋतिक राज, यस सर ऋषभ राज। प्रेजेंट सर। ऋषभ राज का हो गया, ऋतिक राज का हो गया बेटा, है ना। रूपेश कुमार प्रसाद यस सर प्रेजेंट सर। एंड सजल कुमार,
ये देख, ये आया सही है। सही है। सही है। और सर जाने के लिए नहीं बोले फिर भी भाग आए भाई लोग। कौन? ये ऑन केले है, इसके कहीं के ऊपर बनाए देख रहे थे आ गए। और ये घर की क्या दुकान, बाद वाली दुकान में जुई है। सही है ना धन्यवाद। लोग कमा रहे हो। हमारा अटैचमेंट होगा। भाई म्यूट कर ले। और भाई रोहतक कॉलेज कब से आ रहे हो? हेलो। हेलो। बोलना। अंधेरा क्यों कायम है यार, कहे चुप हो सब लोग। क्या हुआ? कौन बोलो भाई। मैंने कहा अंधेरा क्यों कायम कर रखे हो भाई लोग। हाँ तो लाइट जला लो ना। सुपारी निकालो। भाई लाइट जला लिए। मेरे पास भाई सनलाइट है। अंधेरा कायम होने का मतलब ही है लाइट नहीं जल रहा है। अब तो भाई क्या थोड़ा जला लेना लाइट। मोबाइल चार्ज करा लो, अंधेरा गायब हो जाएगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत कहाँ रह गए। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हेलो सर। सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेटे मैं कुछ नियम अनाउंस कर रहा हूँ। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। तो अगर वो प्रेजेंट होंगे Yes, sir. हेलो। यस थोड़ा सा सर। बोलिए ना, आवाज आपकी आवाज आ रही है। सार्थक राघव प्रेजेंट है नहीं है? यस सर, सार- प्रेजेंट सर। हाँ सार्थक राघव बेटे। हाँ आप राघव बेटा। जी सर। आप बेटे अपने को जरा सर। बेटे अपने को जरा करेंगे। यस और सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। और अपना कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन करें। यस सर। बेटे आप कल तो क्लास में थे, बट इससे प्रीवियस क्लास में नहीं थे। क्या मैं जान सर सकता हूँ? था मैंने सर सारी क्लास ली है सर। नहीं, मैंने जो आपकी जो अटेंडेंस मेरे लेक्चर में शो हो रही है वो 23 में नहीं थी।
और मैं एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग अटेंडेंस डाउनलोड करते हैं, तो कोई भी बच्चा किस समय ज्वाइन हुआ, कब लेफ्ट हो रहा है, वो सारा पूरा एक घंटे का रिकॉर्ड आपका आता है। जो भी आपकी क्लासेस का आवर होता है उसका पूरा रिकॉर्ड हमको दिखता है, तो किस समय आपने ज्वाइन किया और किस समय आप लेफ्ट करते हैं। तो जो आप प्रीवियस क्लास में नहीं थे, 23 की क्लास में मैथमेटिक्स में नहीं थे, तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर मैथमेटिक्स या कोई भी क्लास यदि आप रेगुलरली नहीं करेंगे, बेटे बाकी म्यूट करें अपने को, ठीक है बेटे। तो मेरा कहना आपसे यही है कि आप पर डे क्लास लेक्चर में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ओके ओके। ओके बेटे। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका है अनमोल कुमार झा। अनमोल कुमार झा क्लास प्रेजेंट है कि नहीं? अनमोल कुमार झा, नहीं, अनमोल कुमार झा आज भी प्रेजेंट नहीं है। हेलो रंजीत, अनमोल कुमार झा है कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यू आपका है रंजीत कुमार, CSIOT, है क्लास में नहीं? नेक्स्ट स्टूडेंट है तुषार शर्मा। तुषार शर्मा, तुषार शर्मा है कि नहीं है बेटे? सर प्रेजेंट। हाँ, तुषार शर्मा बेटे अपना वीडियो ऑन करेंगे, चेहरा देखना चाहूँगा। हेलो हेलो सर। सर मोहित यादव को आपने लगाया क्या? मैं अभी अभी आया हूँ, जस्ट लेट हो गया। अभी, हाँ अभी आपके, मैं प्रेजेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट को कॉल कर रहा हूँ जो कि एक दिन क्लास कर ले रहे हैं, दूसरे दिन क्लास नहीं कर रहे हैं। ओके सर, ओके सर। ठीक है बेटे। हाँ जी, तुषार शर्मा बेटे आपने अपना अभी जो आपका कैमरा है वो ऑन नहीं किया है, कैमरा ऑन करिए, मैं आपका फेस देखना चाहता हूँ। तुषार शर्मा, हाँ बेटे, हाँ तुषार शर्मा बेटे आपने भी यही किया कि एक दिन क्लास की, एक दिन नहीं की। जान सकता हूँ कल क्लास क्यों नहीं की थी? बताइए बेटे। सर वो कुछ काम था इसलिए नहीं हो पाई। बेटे देखिए, आप इस समय फिजिकली क्लास में तो अभी प्रेजेंट हैं नहीं, आप घर पर हैं, और घर पर तो अगर काम इस तरीके से रहेंगे तो फिर आप क्लास कैसे कर पाएंगे? क्या अच्छी इंजीनियरिंग कर पाएंगे आप? हो जाएगा सर, चलेंगे। ठीक है ना, तो बेटे आगे से ध्यान रखें, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि अब आपको ठीक है पता सर। है कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था, कल आपको मालूम है? नो सर। अब आप देखिए, मैथमेटिक्स जनरली बोर्ड पर होता है और मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। आपके पढ़ाने से पहले कितनी प्रिपरेशन उसके लिए करनी होती होगी कि आपके लिए PPT तैयार करनी होती है, उसके बाद आपको मैं स्लाइड शो करता हूँ, पढ़ाता हूँ, क्वेरी आपके लेता हूँ, कितनी मेहनत होती है उसमें। और आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को अच्छा लगेगा क्या? ठीक है। नो सर। मेरा कहना आपसे ये है कि आप रेगुलर क्लास में रहें, ठीक है? ठीक है ठीक है बेटा, सर। ओके ठीक है, म्यूट करिए आपने को कैमरा आपकी। थैंक यू। तुषार सिंह, तुषार सिंह CSIOT। यस सर। हाँ बेटे, कैमरा ऑन करके फेस दिखाएं। तुषार सिंह। यस सर। हाँ बेटे, आप अपना कैमरा ऑन करें। सर ऑन है सर। आप दिख नहीं पा रहे हैं बेटे? ठीक है, चलिए, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो तुषार सिंह बेटे आपका भी यही है, ठीक है? तो मेरा कहना यही है कि आप रेगुलर क्लास में रहें, और ये ऐसा नहीं है कि केवल मैथमेटिक्स में ही सभी क्लास को आप रेगुलर रखेंगे, ठीक है? टाइम से ज्वाइन करेंगे और टाइम से लेफ्ट करेंगे, ठीक है बच्चे? समझ आ रहा बेटे? सर मैं रेगुलर हूँ सर। नहीं नहीं बेटे, ऐसा है कि मैं जो अटेंडेंस लेता हूँ, मैं आपको कॉल करके तो अटेंडेंस लेता नहीं हूँ कि जिससे आपका अटेंडेंस मिस हो जाएगा, ठीक है बच्चे? सर वो हाँ, हाँ सर,
हाँ देखिए बेटे, जब मैं अटेंडेंस डाउन मेरी बात हो जाती है कभी मेरी बात तो सुनिए। अगर नेटवर्क इशू भी होता है तो आप कब ज्वाइन किए, कब लेफ्ट किए, वो डाउनलोड अटेंडेंस में दिखता है। यानी किसी भी तरह का ऑप्शन ऐसा नहीं है कि अगर आप पहली क्लास में मान लिया 10 मिनट पहले भी अगर ज्वाइन हुए हैं और जब से आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ है और उसके 10 मिनट बाद आपने लेफ्ट कर दिया है, तो वो भी दिखेगा कि कितने टाइम पर आपने ज्वाइन किया और कितने टाइम पर आपने लेफ्ट किया। जब से मैं क्लास में एंटर करता हूँ तब से लास्ट तक अटेंडेंस ज्वाइन लेफ्ट सब दिखता है वो डाउनलोड से। अगर मैं कॉल करके अटेंडेंस लेता तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई हो सकता है कि उस समय पर आप ना हो क्लास में। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने अटेंडेंस अभी तक कभी भी कॉल करके नहीं लिया है, क्योंकि इसमें एक तो काफ़ी टाइम भी लगता है। तो मैं आपके डाउनलोड कर लेता हूँ अटेंडेंस जब लेक्चर स्टार्ट होने के लास्ट में। जब लेक्चर स्टार्ट होता है तब से काउंटिंग शुरू हो जाती है आपकी, कौन स्टूडेंट कब ज्वाइन किया। और जब मैं लास्ट में डाउनलोड करूँगा तो हर एक बच्चा प्रेजेंट जिस समय भी हुआ वो दिखता है। तभी तो मैंने आपका अटेंडेंस अब ये देखा है सबको। ऋषभ राज, नेक्स्ट स्टूडेंट ऋषभ राज। यस सर। हाँ बेटे, जरा कैमरा ऑन करें, आप अपना फेस दिखाएं मुझे। यस सर। बेटे कल तो आप क्लास में थे बट आप उससे प्रीवियस क्लास में नहीं थे। यस सर, मंडे का क्लास मैंने मिस किया था और शायद 19 नवंबर का क्लास मिस किया था। तो कल जो 19 या 20। हाँ, कल जो मैंने लेक्चर लिया किस टॉपिक पर लिया बता सकते हैं? सर मैट्रिक्स से रिलेटेड था। आप नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बता रहे थे। किसकी प्रॉपर्टीज थी? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की सर। ठीक है ना बेटे, तो अब देखिए, अब आपको मालूम है कि कल मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी मैंने बताया, पर उससे प्रीवियस क्लास में मैंने मैट्रिक्स में क्या चीज़ पढ़ाई आपको नहीं मालूम है। और जनरली क्या होता है कि जब मेरी बात सुना है, जनरली क्या होता है कि जब अगर आप ऑफलाइन में होते तो हो सकता था कि आपका कोई भी फ्रेंड आपको हेल्प कर देता कि कल ये पढ़ाया गया ना, एक्सप्लेन भी कर सकता था। पर क्या ऐसा हो पाएगा? अब आंसर दें। नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, तो अगर आपको क्वेरी भी करनी है, देखिए आपकी टाइमिंग शेड्यूल भी है, मोबाइल पर भी ज़्यादा देर आप नहीं बैठ सकते हैं, हार्मफुल भी है, तो उसमें क्वेरी भी होंगी। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, आगे को जब आपका जो मेन टॉपिक चलेंगे तो थोड़ा सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसको अगर आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम होगी तो आप सीख पाएंगे क्या? इसलिए एक बार रिवाइज कराया जा रहा है। 3 तारीख से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो सिलेबस में देखिए आपका फर्स्ट डे से मुझे नोट्स को प्रिपरेशन चाहिए। फर्स्ट डे से आपका नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए। जिस तरीके से मैं अब आपसे आपको देख पा रहा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ, उसी तरह से मैं आपको नोट्स भी शो कराऊंगा। आपने किस तरीके का कितना सुंदर नोट्स बनाया है और उसको आप शो कर सकते हैं, इसी कैमरे पर शो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर, तो कर सकते हैं। हम इसको ऑफलाइन क्लास की ही तरह डील कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं है। ठीक है, बस नेटवर्क इशू ना हो, चाहे आपकी तरफ से हो या मेरी तरफ से हो। अगर नेटवर्क इशू होगा तो क्लास में डिस्टर्ब होगा और हो सकता है कि मे भी उस समय ना हो पाए क्लास या कोई दूसरा अल्टरनेट हमको देखना होगा। पर हम ये कोशिश रखें कि जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करें। आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन मोड में अगर क्लास रही, एग्ज़ाम जब होगा कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, तो नोट्स ही आपको अच्छे से रहेगा। भाई बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर जो टीचर का नोट्स होता है वो वाकई अच्छा होता है। ठीक है बेटे, तो ये चीज़ ध्यान रखें आप। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स डेली प्रेजेंट हैं वो भी ध्यान रखें कि एब्सेंट ना हो। चलिए खैर, अब और ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आज तो मैंने केवल इतने स्टूडेंटों को कॉल किया है। और ठीक है बेटे, माइक ऑफ करिए, अब अपना कैमरा ऑफ करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि लास्ट में आके ज्वाइन करते हैं। 5-6 स्टूडेंट्स थे जो कल 10:48 पर ज्वाइन किए, तो वो भी नेम मेरे पास है, पर अभी मैं कॉल नहीं करना चाहता हूँ। मैं कहना यही चाहता हूँ कि क्लास में आप टाइम से प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना आगे की स्टडी पे करते हैं। चलिए, मैं भी कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। और सब ध्यान रखेंगे कि जब भी आप आंसर्स करें, ठीक है, जब भी आप आंसर्स करेंगे तो अपना जो माइक है आंसर्स करने के बाद तुरंत म्यूट करेंगे। एकदम आप वेल ट्रेंड स्टूडेंट्स की तरह क्लास में दिखने चाहिए। ठीक है, जब भी आपने आंसर किया तुरंत अपना कैमरा म्यूट कर लिया। मोहित यादव कुछ कहना चाहते हैं बेटे? मोहित यादव। नो हाँ नो सर। ठीक है,
ओके ठीक है, तो अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कल स्टूडेंट नहीं थे। तो लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा, वैसे तो आपने 12th में सीखा हुआ है और कल मैंने वो रिवाइज कराया, उस पर आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने सीखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है कि जो मैट्रिक्स कैपिटल ए होता है, जो मैट्रिक्स कैपिटल ए होता है उसी का अगर हम ट्रांसपोज करें और उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, मैट्रिक्स ए कैपिटल ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि हम करें और दोनों के रिजल्ट सेम रहते हैं, कोई भी मैट्रिक्स में चेंज नहीं आता, तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी हमने बताई थी, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी पे हमने डिस्कस किया था। डिटर्मिनेंट्स को हमने फाइंड आउट करना सीखा था। तो 2/2 के डिटर्मिनेंट्स हमने फाइंड आउट करने सीखे थे। ठीक है, 3/3 का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड आउट करना सीखा था। 2/2 के 2 क्वेश्चंस हमने करके देखे थे। 3/3 के डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी किस तरीके से हम उसको देखिए, किस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं, पूरा सॉल्यूशन करके हमने उसको देखा था। नेक्स्ट उस पर हमने एग्जांपल्स भी किए थे। तो एग्जांपल्स हमने 3/3 के डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए किए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटरचेंज द रो एंड कॉलम। अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उनकी जो वैल्यू फाइंड आउट होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है सॉल्व के बाद। सेकंड प्रॉपर्टी हमने सीखी थी कि यदि डिटर्मिनेंट के जो किसी भी, देखिए रो में हम इंटरचेंज कर लेते हैं, R2 को R1 में इंटरचेंज हमने किया था, ये R2 को हमने पहले लिख लिया और R1 को पहले लिख लिया, तो उसमें नेगेटिव साइन आ जाता है, ये प्रॉपर्टी थी। और थर्ड प्रॉपर्टी आपकी थी कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट से हम स्केलर कांस्टेंट यानी कि हम कॉमन ले लेते हैं किसी भी रो या कॉलम से, तो अगर हम कॉमन लेंगे तो बाहर उसमें मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी थी कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट दो पार्ट में, जैसे हमने इसको देखिए फर्स्ट, इसको हमने जहाँ मैं कर्सर चला रहा हूँ इस समय, इसको हमने दो पार्ट में a1 प्लस x को हमने दो पार्ट में कर लिया। पहला a1 a2 a3 एक साथ ले लिया, यहाँ पर x y z एक साथ ले लिया। इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। और रिमेनिंग्स जो आपके कॉलम हैं 2 और कॉलम 3, उनको हमने दोनों डिटर्मिनेंट्स में एज इट इज रखा। तो इस तरीके से हम किसी भी डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी आपकी कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम, जैसे इसमें मैंने देखिए C1 में क्या किया है, C1 के प्लेस को मैंने लिखा है C1 प्लस MC2 माइनस NC3। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। अभी आगे की प्रॉपर्टीज के यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। 6, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का दो रो या कॉलम एक जैसा हो जाता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी हो जाती है, आपकी 0 हो जाती है। ठीक है। तीसरा कि ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0, देन द वैल्यू इट्स वैल्यू इज 0। देखिए पूरा रो, कंप्लीट रो आपका अगर ये 0 हो जाता है, या कंप्लीट कॉलम भी 0 हो सकता था। तो अगर उसके तीनों एलिमेंट, जैसे ये है 2/2 की, तो अगर दो एलिमेंट हैं तो दोनों ही यदि रो के 0 हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और ये 8th प्रॉपर्टी थी आपकी कि यदि हम किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो जो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर आती है। ये 8 प्रॉपर्टी हमने कल डिस्कस की थी। अब इनके बेस्ड फिर हमें अभी क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या ऑपरेशंस ऑपरेट कर सकते हैं तो उसको देखते हैं। देखिए हमने, अब ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड थी बात। अब जो हम करेंगे किसी भी क्वेश्चन में अगर हम प्रॉपर्टी को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किसी डिटर्मिनेंट को, तो किस प्रकार से करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हम रो और कॉलम ऑपरेशंस का यूज करेंगे।
फॉलोइंग आर नोटेशंस द इवेलुएट अ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी आर टू आर आई टू डिनोट ith रो। आप ये कहना का मतलब ये है कि हम किसी भी रो की डिनोटेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम किसी की रो का नेम, जैसे हमारा अपना नेम है, उससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि किसको, जैसे मैंने अभी कॉल किया था स्टूडेंट्स को, तो किसको कॉल किया, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस रो को कॉल कर रहे हैं, उसमें क्या ऑपरेशन हमें लगाना है। तो जैसे हमने ith लिखा है यहाँ पर, ith आर आई यानी कि रो आई, तो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा रो 1 रो 2 इस तरीके से, तो हम रो को इस तरीके से डिनोट करेंगे। ith रो को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे आर आई से। सेम R1 इंटरचेंज R2। अब इसमें देखिए हम ऑपरेशन क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए केवल वही ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, हम अपने मन का ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे। कई बार जनरली मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स जो मन आता है वो ऑपरेशन यूज कर लेते हैं, नहीं, अगर ऐसा ऑपरेशन यूज करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा आंसर सही से आ पाए। तो इसलिए हमें कुछ ही ऑपरेशंस का जो पहले से वेल डिफाइंड है उन्हीं को यूज करेंगे, अपने मन का ऑपरेशन हमें नहीं लगाना है। तो यानी कि हम पहले ये भी इंश्योर कर ले कि किस ऑपरेशन को यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए पहली प्रॉपर्टी है आपकी, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, पहला जो पॉइंट था वो तो यही था कि R1 या R2 यानी कि आर आई यानी डिनोट करती है ith रो को। तो हमने ये सीखा कि किस रो को कैसे डिनोट करना है। दूसरा हमने सीखा कि क्या क्या प्रॉपर्टी अब हम लगा सकते हैं। देखिए इसमें जैसे हमने बोला कि R1 का इंटरचेंज, देखिए जब मैं रिवर्सेबल साइन लगाता हूँ, देखिए ये आपका दोनों बोथ साइड मैंने एरो लिया है, तो इसका मीनिंग है कि मैं जो इनके जो प्लेस है R2 के प्लेस पर R1 को लिख रहा हूँ और R1 के प्लेस पर R2, यानी कि रिवर्स कोई भी रो या कॉलम को इंटरचेंज किया जा सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम R1 के प्लेस पर R2 लिख लें या R2 के प्लेस पर R1 लिख लें, तो उसको इंटरचेंज रो हमारे लिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अलाउड होता है। तो इस रो और कॉलम ऑपरेशन को लेते हुए हमें क्या करना है, जब अब हम अपने मेन क्लास में डेट 3 से हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम अपने जो मेन क्वेश्चन हैं उन्हीं को करेंगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑपरेट होंगी, सेम ऑपरेशन। तो इसीलिए ये सिखाए जा रहे हैं, अभी ओवरव्यू केवल रिवाइज दिया जा रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन जब ऑपरेट करेंगे इसी से होंगे और आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन इन्हीं को ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए होंगे। तो इसीलिए इसको मैंने पहले बेसिक में रखा है। तो पहला पॉइंट ये वाला देखिए R1 फर्स्ट किस तरीके से हमने पहला पॉइंट क्या बताया, ध्यान रखेंगे कि R1 और R2 का या किसी भी और अनदर रो R3 और R4 अगर है तो उनका इंटरचेंज यानी कि इंटरचेंज ऑफ रो हम कर सकते हैं, अलाउड होता है। क्लियर है सभी के फर्स्ट प्रॉपर्टी? यस सर। ठीक है। सेकंड, ठीक है, ओके बेटा। सेकंड, अब ये थर्ड प्रॉपर्टी में इसमें लिखा गया है कि R1 सॉरी RI बोला गया है, तो RI मान लिया मैं सपोज R1 किसी भी रो में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ध्यान देने की, देखिए यहाँ से ध्यान देंगे। R1 मैंने एरो लिया, इसका मीनिंग क्या है कि मैं R1 में चेंज करना चाहता हूँ। पहले R1 का लिखने का मीनिंग ही क्या है कि मैं केवल R1 रो में चेंज करना चाहता हूँ, एन अदर रो को हम देखेंगे नहीं, ठीक है। तो केवल हम देखिए जहाँ हम चेंज करना चाहते हैं उस रो को हम पहले लिखते हैं और उसी के प्लेस को पूरे को चेंज करते हैं। अभी जब हम प्रॉपर्टी लाएंगे तब दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसी को पहले लिखते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, ये मोस्ट पॉइंट आपका, कि R1 जिसमें हम चेंज करना चाहते हैं तो उसी को हम पहले लिखते हैं। देखिए फिर इसने बोला है लैम्डा ij, तो इसका मीनिंग क्या है कि हम प्लस, देखिए ये प्लस ऑपरेशन मैंने लिया है, प्लस लिया है यानी कि हम ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं? तो देखिए अब जब मैंने लैम्डा यहाँ ले लिया लैम्डा, तो लैम्डा जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्केलर वैल्यू है, जो नेगेटिव में भी हो सकती है और पॉजिटिव में भी। तो मैंने यहाँ पॉजिटिव यूज कर लिया है, बट अगर लैम्डा के साथ नेगेटिव होगा तो ऑलरेडी वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? तो अब हम कहते हैं कि अब देखिए मैंने देखिए R1 में ऑपरेशन ऑपरेट किया, तो R1 को सबसे पहले मैंने R1 को ही लिखा, ना कि और कोई रो लिखा मैंने। तो जिसमें हम ऑपरेशन लगा रहे हैं उसी को पहले लिखते हैं, उसके बाद उसमें एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। वो किसकी वजह से आएगा, लैम्डा के जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं कि हम -2 से प्रोडक्ट करना चाहते हैं या +2 से या 3 से या -3 से, तो यानी कि स्केलर किसी भी वैल्यू से नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल एडिशन के लिए ही ऑपरेट होता है, ठीक है। अब इसमें
जिस रो के थ्रू हमको करना है तो उसका नाम लिखते हैं। जैसे मान लिया मैंने R1 को मुझे ऑपरेट करके R1 के प्लेस पर लिखना था। हेलो सर हाँ बेटे बोलिए। सर लैम्डा वाला फिर से बताइए ना, जो लैम्डा वाला अभी बताया आपने। हाँ बता रहा हूँ बेटे, ये देखिए दोबारा से मैं चलो सबको पहले इरेज करता हूँ, फिर केवल इसी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये अगर हमें आ गया, ये समझ लीजिए कि पूरा मैट्रिक्स हमारा इसी पर बेस्ड रहेगा। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑपरेशन अगर हमें लगाने आ गए तो पूरा मैट्रिक्स इसी पर आगे को बेसिक्स प्रॉपर्टी को लेते हुए हम क्वेश्चंस करना सीखेंगे वहाँ। देखिए हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, सभी देख पा रहे हैं, ये है आपका आर। देखिए हम सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि किस रो में हम चेंज चाहते हैं। ठीक है, तो जिस रो में हम चेंज चाहते हैं, मान लिया हमने सपोज माना कि क्वेश्चन में कि R1 को हमें चेंज करना है, R1 में किस, अब वो प्रॉपर्टी को देख के मालूम होगा कि क्या ऑपरेट करके हमें चेंज करना है। ठीक है, और अगर हमें R1 में चेंज करना है तो हम एरो का निशान लगाएंगे, हमें ये बताएगा R1 कि हमें जो अब हम चेंज कर रहे हैं केवल किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को। तो इसलिए बाकी रो को ना छेड़ते हुए हमें केवल R1 में ही ऑपरेशन लगाना है। ये बात तो क्लियर हुई सभी के? पहले हमने क्या किया कि R1 को ऑपरेट करना है। ठीक, उसके बाद अब जिसको ऑपरेट करते हैं तो ये रूल है कि उसी रिजल्ट को पहले लिखेंगे। R1 को ऑपरेट करना है तो R1 ही लिखेंगे। ठीक है, अब वहाँ क्वेश्चन में हमें मालूम होगा कि हमें R1 में क्या ऑपरेट करके जीरो बनाना होता है। जनरली क्या बनाना होता है, हमको जीरो बनाना होता है। तो R1 और R2 में क्या ऑपरेशन हम लगाएं कि जो R1 का जो फर्स्ट प्लेस है वो जीरो हो जाए, ये हमें करना होता है। तो हो सकता है कि हम किसी भी अनदर रो को लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि अनदर रो को हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर अनदर रो ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड कर सकते हैं। अब कितना ऐड करके जीरो कर पाएगा, ये जैसे मैंने मान लिया कोई भी एग्जांपल के लिए मैंने रो ली 1 2 3 2 4 6। अब मुझे यहाँ ऑपरेशन लगाना है ये। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये जीरो करना है। देखिए मुझे यहाँ पर ये जीरो करना है, इसके प्लेस को ये मान लिया मुझे इस 1 के नीचे इस 2 का जो प्लेस मैंने सर्कल लिया है इसको जीरो करना है। तो मुझे क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ऊपर मैंने ऑपरेशन किस तरीके से लगाते हैं लिखा है। देखिए इसका नाम क्या है, पहले इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इस रो का नाम क्या है, R1 है। और जो सेकंड रो है इसको हमने क्या नाम दिया, R2। समझ रहे हैं आप? इतना तो क्लियर हुआ जो मैं बोल रहा हूँ? बेटे बोलिए जरा, एक स्टूडेंट जवाब देगा। यस सर। ठीक है, यस सर। तुरंत तुरंत म्यूट करेंगे। ये समझ में आ रहा है? अब मुझे ऑपरेट करना है। देखिए अब मुझे फर्स्ट इसके फर्स्ट प्लेस को जीरो बनाना है। तो क्योंकि मुझे R1, अब मुझे ऑपरेशन किस में लगाना है, किसको जीरो बनाना है, देखो R2 को जीरो बनाना है। तो मुझे यहाँ अब R1 में ऑपरेशन नहीं लगाना, मुझे किसके प्लेस पर ऑपरेशन लगाना है, R2 के प्लेस पर, क्योंकि मुझे जिस प्लेस को, हाँ R2 को जीरो करना है मुझे। तो मैंने R2 लिखा, फिर से मैंने R2 लिखा, ले लेंगे वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें कितने की प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, किसमें प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, पहले उसे लिखे, किसमें प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, R1 में। R1 में करना हो, कितना की प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, 2 से। अब मुझे ऐड करना है, देखो बात अभी आप मुझे आंसर, मेरी बात सुनेंगे, म्यूट करें इसको। अब 2 से प्रोडक्ट मुझे करनी है, तो 2 से प्रोडक्ट मैंने कर ली। पहले मैंने क्या लिखा, R2 के प्लेस पर चेंज करना था, R2 लिखा। किसकी हेल्प से चेंज करना था, मैंने R1 लिखा, क्योंकि इसी के नीचे चेंज करना है। उसके कितने की प्रोडक्ट चाहिए, मैंने वो लिख ली। अब मुझे देखना साइन, साइन अगर देखिए नेगेटिव होता तो मैं ऐड करने पे ही हो जाता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -2 से प्रोडक्ट करूंगा, तभी तो ये नेगेटिव करके इसको ऐड करने से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ऑपरेशन लगा। तो ऑपरेशन लगाने के बाद देखिए R1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, R1 एज इट इज रहेगा, 1 2 और 3। चेंज किस में आया, R2 में। तो R2 में क्या चेंज आया, अगर मैं इसे करना चाहूँ तो मैंने क्या लिखा है सबसे पहले, देखो R2 लिखा है सबसे पहले। अब मैं ऑपरेशन को ऑपरेट करता हूँ तो मुझे कैसे करना है, तो R2 जो थी मेरी, R2 मेरा क्या था, 2 4 और 6 थी। R2 की वैल्यू यही तो थी, ये मेरा R2 था।
R1 मैंने क्या लिया था, 1 2 और 3 लिया था। तो इसमें मैंने देखो यहाँ पर मैंने इसको 2 से प्रोडक्ट करनी है, तो मैं इस प्लेस को सभी को जब मैं 2 से प्रोडक्ट करूंगा तो ईच प्लेस को 2 से प्रोडक्ट करूंगा। तो इसको मैंने प्रोडक्ट किया तो कितना आ गया आपका, 2 प्रोडक्ट करने के बाद आपका ये आ गया 2। और इसको मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 4। इसी तरीके से मैं सेकंड प्लेस को करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा 6। देखिए ये तो बिल्कुल एक जैसे हो गए। अब क्योंकि मैंने यहाँ कौन सा साइन यूज किया है, नेगेटिव, तो मैं इसमें नेगेटिव लगाऊंगा। आप ऐसे रफली कर सकते हैं। अब ये तो पहला रिजल्ट भी 0 हो गया जब मैं इसे ऐड करूंगा। ऐड करने में दोनों साइन अपोजिट हैं, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो जो मेरा मेन ऑपरेशन था उसमें मेरा था 1 2 3, और इसके नीचे मैंने जब ऑपरेट किया तो रिजल्ट क्या हो गया, 0 0 0 0 0। तो नेक्स्ट उसमें मैं ऑपरेशन में अगर मैं मैट्रिक्स में लगा रहा हूँ तो इस तरीके से लिखूंगा, डिटरमिनेंट लगा रहा हूँ तो डिटरमिनेंट का साइन लगाऊंगा। तो ये ऑपरेशन लगाना आया पहला, सेकंड, ये थर्ड ऑपरेशन जो मैंने सिखाया अभी। यस सर। क्लियर है सभी के? यस सर। बाकी क्वेश्चन में ऑपरेट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये मैथ्स आपका मोस्ट पॉइंट है आपका। जब हम क्वेश्चन उसमें मैट्रिक्स में सीखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी ऑपरेशन को लगाना पड़ेगा। रो ऑपरेशन को ही हमें सबसे ज़्यादा यूज करना होता है। अब नेक्स्ट आपका है 4th, लैम्डा आर आई, यानी कि ये तो आप जानते ही हैं, तो आप पहले से ही करते हुए आए हैं कि लैम्डा आर आई किस तरीके से यूज करते हैं हम। तो लैम्डा आर आई का मतलब यही है कि वही आर, कोई भी मान लिया R1 में हम चेंज कर रहे हैं तो हम उसमें प्रोडक्ट कर सकते हैं और R1 ही लिख सकते हैं। यानी कि रो 1 में अगर पूरे रो में हम 3 से प्रोडक्ट कर लें तो ये भी अलाउड है ऑपरेशन। तो ये दो मोस्ट ऑपरेशन हुए आपके कि किसी भी रो को हम दूसरी रो के साथ ऐड कर सकते हैं किसी भी स्केलर की प्रोडक्ट करके, और दूसरा कि किसी भी रो में हम रो के प्लेस पर हम रिप्लेस कर सकते हैं उसके स्केलर की प्रोडक्ट करके। तो ये दो आपके हैं। और एक पॉइंट आपका था कि किसी भी रो का इंटरचेंज अलाउड होता है। अब देखिए यहाँ मैंने प्रोडक्ट लिखा है, ये प्रोडक्ट ही तो लिखा है, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। मुझे कहीं रिक्वायरमेंट आप कहेंगे सर आपने डिवाइड का तो बताया ही नहीं, तो डिवाइड में हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कहीं हमें ये रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो देखिए बोलूंगा तो मैं इसको प्रोडक्ट ही, और आप जनरली देखें तो इसमें 1/3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो बोला जाएगा ही प्रोडक्ट के ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन यानी कि इसी ही ऑपरेशन में, ऑपरेशन नंबर 4 में ये दोनों ऑपरेशन आ गए, मल्टीप्लाइड भी कह सकते हैं हम इसको, और ये डिवाइड भी। तो हम लिखेंगे हमेशा ऐसे ही जैसे मैंने अब लिखा है। आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि R1 डिवाइडेड बाई 4, ये नहीं कहेंगे, मल्टीप्लाई में ही रख लेंगे इसको। ठीक है, ये स्लाइड क्लियर हुई सभी के? इसमें कोई क्वेरी है बच्चों? यस सर। क्वेरी नो सर। यस सर। क्लियर सभी के? तो इसके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, और 3 तारीख से तो आपको नोट्स प्रिपेयर करना ही है। उस क्लास में थोड़ा सा और इफेक्टिव क्लास होगी क्योंकि वो सिलेबस की क्लास होगी। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, आप तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे और डेली का काम जो आपका दिया जाएगा उसको डेली आप एक फेयर नोटबुक में करें। एक तो आप रफ में पढ़ेंगे, स्टार्ट में हो सकता है आपसे क्वेश्चन कराए जाएं, आप गलती करें, पर आपको जो नोट्स बनाना है वो अच्छे से साफ साफ बनाना है, तो इसलिए आप उसको फेयर करेंगे। तो उससे थोड़ा जब सेकंड टाइम आप रिवाइज करते, मान लिया आज आपने सीखा और तुरंत उसको फेयर किया तो वो सीखने में भी आता है। अगर कोई क्वेरी उसमें होती है तो नेक्स्ट डे कर भी सकते हैं। ठीक है सर, 3 से कॉलेज खुल रहा है क्या? हाँ, 3 से कॉलेज ओपन है आपका। ओके सर। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड हैं आपके, जो जैसा पढ़ना चाहेगा। ठीक है, ओके सर। ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड बेटे। देखिए कॉलेज अब में भी हम आके सर पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, कॉलेज में भी आके पढ़ सकते हैं। देखिए जो भी जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेज आ पाएंगे उस हिसाब से उसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो हम इनकी देखिए, हम एक तो जो हमने सीखा कि डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट हमने सॉल्व करना सीखा था। अब हम प्रॉपर्टी बेस्ड सीख रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने सीखी थी, तो पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको देख रहे हैं। तो हमने ये देखिए डिटर्मिनेंट हमें ये दिया गया है। हमने देखा कि ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में, कॉलम 1 C1 में
अगर हम 7 कॉमन लेते हैं, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए ईच एलिमेंट में हम 7 की प्रोडक्ट मैंने करके दिखाया, इट मीन्स 7 कॉमन लिया जा सकता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, जो 7 कॉमन लिया, हाँ तो 7 कॉमन लिया जा सकता है। तो ये हमारी मैंने प्रॉपर्टी दिखाई थी कि सबसे पहले ही शायद प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि कॉमन हम ले सकते हैं। तो कॉमन को कहाँ लिखेंगे? डिटर्मिनेंट से बाहर हमने 7 कॉमन ले लिए, और जो रिमेनिंग सब क्या बची अभी, ये देखिए ये बचा आपका रिमेनिंग 6, 4 और 2। तो इसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। 1, 7, 4 ये एज इट इज था, 6, 4, 2 ये भी एज इट इज रहा। तो मैंने केवल क्या कॉमन लिया? टेकिंग आउट 7 कॉमन फ्रॉम C1, यहाँ लिख भी दिया जिससे कि आपको ध्यान रहे कि हमने किस तरीके से इसको कॉमन लिया। अब देखिए, अब हमने क्या चीज़ देखने को मिलती है कि हमको देखने को मिला कि देखिए ये C1 और ये C3, ये जो दोनों कॉलम है, देखें आप कि 6, 4, 2, 6, 4, 2 दोनों सेम है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर C1 और C3 आर आइडेंटिकली, तो दैट मीन्स क्या होता है कि डिटर्मिनेंट विदाउट सॉल्व के, अगर हम इसे सॉल्व करते तो ऐसे सॉल्व करते 6, 7, 4, 3, 2 इस तरीके से तो करते, और फिर बीच में नेगेटिव साइन, फिर से 1, फिर ये डिटर्मिनेंट कल सिखाया था आपको। तो इसमें देखिए टाइम लगेगा आपको। प्रॉपर्टी से इजीली सॉल्व हो गया कि हमने 7 बाहर लिया और हमने मालूम कर लिया कि इसके 2 रो जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। तो इसे एक्सपेंड ना करके हमने प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व किया। एक्सपेंड करना तो कल मैंने सिखाया ही था आपको, सबको समझ आ ही गया था सभी के वो। तो अब हमने इसे क्या किया कि प्रॉपर्टी के थ्रू किया। तो प्रॉपर्टी में हमने देखा कि C1 और C3 ये आइडेंटिकल हैं। तो ऐसे केस में जो डिटर्मिनेंट की, पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसको अगर हम विदाउट एक्सपेंड किए लिख सकते हैं कि ये हमेशा 0 आएगा। अब चूंकि 7 के साथ मल्टीप्लाई होगी 0 की, तो रिजल्ट इस जो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इसमें यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, क्वेरी कर सकता है, अदरवाइज हम आगे। सर केवल प्रॉपर्टी फॉर्म में लाने के लिए ये सब ऑपरेशन करना पड़ता है? हाँ बेटे, ये प्रॉपर्टीज देखिए, हमें क्या है कि हमें वहाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। जैसे हम अपने जो मेन उसको सीखेंगे यूनिट में, तो उसमें कहीं कहीं पर हमें कई बार क्या होता है कि एक्सपेंड करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अब जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हाँ, एग्जाम में बैठते हैं तो हम बेस्ट सॉल्यूशन किधर से दे सकते हैं, कितने कम टाइम में हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो उस समय पर हम प्रॉपर्टी बहुत इजी होती है। फिर कई बार क्या होता है, जैसे ABC हमको दे दिए गए, मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ABCD दे दिए गए तो कई बार उनमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा क्या हो जाता है, लार्ज कैलकुलेशन हो जाती हैं। उसमें हमें माइनस में कौन आ गया, प्लस में कौन आ गया, कट पा रहा है नहीं कट पाता है आपस में, और सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर हम बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लेते हैं, तो इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? क्लियर हुआ सभी? नो सर, आई गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, ये आपको ये भी सेम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए प्रॉपर्टी आपकी आई जो ये अभी हमने की थी कि देखिए फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पर भी देखिए आप, फर्स्ट कॉलम में हम क्या कर पा रहे हैं, देखिए 2, 2 ये है ही, और ये -10। तो इसमें अगर मैं कॉमन लूँ, 2 कॉमन ले लें। हाँ 2 के साथ में देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है। अगर मैं इसमें कॉमन ले लेता हूँ, मुझे देखते ही मालूम हो रहा है कि अगर मैं इसमें कॉमन ले पा रहा हूँ कुछ, तो मे बी ये C2 के इक्वल हो जा रहा है। देखो अब कॉमन लेने में बस क्या अपोजिट साइन है इसमें, देखिए यहाँ -3 है और यहाँ 6 पॉजिटिव में है। तो मैंने क्या काम किया कि अगर मैं नेगेटिव में इसमें कॉमन ले लूँ, अब देखिए -3 और -2 की जो ये प्रोडक्ट है +6 ही आएगी। तो मैंने कोई चेंज तो इसमें किया नहीं है, भाई कोई भी चेंज मैंने किया इस डिटर्मिनेंट में? कोई भी चेंज नहीं किया है। नो सर। अगर मैं इसको अभी यहाँ इस स्टेप को भी, ये जो मैंने स्टेप ये है, इस स्टेप को भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो प्रीवियस स्टेप ये वाला आ जाएगा। तो यानी कि मैथमेटिक्स में ये सबसे पहले पॉइंट है कि हम कहीं भी अपने मन का चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम चेंज करेंगे तो या तो वो कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए या कोई वो रूल होना चाहिए जिसकी वजह से हम ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ।
अब देखिए, अब सर जब मैं -2 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। देखिए, मैंने कल एक रूल बताया था कि अगर हम अपने मन से कोई चीज़ इस डिटर्मिनेंट में करना चाहते हैं, मान लिया ये डिटर्मिनेंट कोई भी है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उसमें डिवाइड भी करना होता है। इस मल्टीप्लाई को मैं यस अंदर ले जा सर, आई सकता हूँ। गॉट इट। मैंने नीचे लिखाया था एम करके एक वो दिया था कि एम की अगर हम मल्टीप्लाई, ये क्योंकि मैंने खुद से की है। अब देखो, मैं किसी को मल्टीप्लाई अपनी तरफ से तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा मैथमेटिक्स में। तो इसलिए जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने इसको क्या कर लिया, जैसे ही मैंने यहाँ मल्टीप्लाई की तो इसके एक कॉलम या रो में मुझे एम से मल्टीप्लाई अंदर भी करनी होगी अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ। क्लियर है बेटे? तो इसलिए वो रूल यहाँ नहीं यस लगता। सर। हाँ, बट अगर मैंने एक उसमें कॉलम में ये कॉमन ले लिया, ये अब जैसे, ठीक है, बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो अगर मैं इसे सर लिखूं, यस हाँ, सर। यस अब जैसे अब देखिए, तो ये मैं अब इसे कॉमन ले सकता हूँ बाहर, कॉमन ले लिया मैंने, ये क्लियर है? अब कॉमन लेने से तो मेरे रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे, देखिए ये जो मैंने टिक किया -3 -1 और 5, तो मैंने यहाँ ये इसको लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब ऐसा देखने पर मुझे क्या मिला कि C1 और C2 के जो रिजल्ट्स हैं, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों बिल्कुल आइडेंटिकली हो गए। देखिए मैंने लिखा यहाँ -2 कॉमन लेने पर C1 मैंने लिखा, तो ऐसा करने से C1 और C2 आइडेंटिकली हो गए। जब ये आइडेंटिकली हो गए तो हमारी प्रॉपर्टी बन गई। प्रॉपर्टी क्या बनी कि 2 रोज 2 कॉलम्स आइडेंटिकल देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0, कि जब 2 रो या 2 कॉलम हमारे क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो ऐसे केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो क्लियर हुआ सभी के? सर यहाँ पे 2 यस कॉमन सर। लेके कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को ऐड करेंगे तो कॉलम 1 0 आ जाएगा। देखिए मैंने अभी, हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए प्रॉपर्टी हमारे पास कितनी, मैंने अभी 8-10 प्रॉपर्टी आपको डिस्कस की, तो 8 प्रॉपर्टी में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इजी हमें दिखा कि अगर हम इसे दोनों कॉलम को एक जैसा बना लें या रो को एक जैसा बना लें तो हमारा इजीली हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के थ्रू 0 है। अब जैसा आप कह रहे हैं कि रो किसी भी, देखो हम दो तरीके से डिटर्मिनेंट कभी भी अगर हमारा टफ बन जा रहा है तो हम क्या करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट है, कोई भी वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 3 4 1 3 2 और 1 6 4 कोई भी डिटर्मिनेंट है, तो हम जनरली क्या करते हैं कि या तो स्टार्टिंग की ये दोनों वैल्यू को 0 बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि एक ही उसमें स्टेप में सॉल्यूशन आ जाता है। तो हम यही तो पहला करते हैं कि अगर हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंडिंग फॉर्म में ले जाकर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि पूरे डिटर्मिनेंट में किन्हीं भी 2 प्लेस को 0 बना लो। ये भी जरूरी नहीं है कि हम एक साथ में ही 0 बनाएं, ठीक है, कहीं भी किसी पूरे डिटर्मिनेंट में 2 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब 2 zeros हमें डिटर्मिनेंट के अंदर मिलेंगी तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है और इजीली सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। यही कहना चाह रहे हैं बच्चे? हेलो, हाँ तो हेलो। हाँ, ठीक है, यही तो कहना चाह रहे थे आप कि सर यदि हम इनमें 6 के प्लेस को 0 बना लें या 2 के प्लेस को 0 बना लें या 3 के प्लेस को 0 बना लें तो हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर? यस ठीक है, यस सर। तो ये समझ में आ गया, प्रॉपर्टी समझ में आई। पर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने क्या किया कि उससे 2 उसके जो कॉलम हैं उनको आइडेंटिकल कर लिया। तो इन 2 कॉलमों को आइडेंटिकल होने से हम प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट 0 है। तो फिर हमें एक्सपेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। क्लियर? एक्सपेंड करते ही तो यस एक्सपेंड करने में हम क्या सर। कर और सकते हैं, हाँ एक्सपेंड और करने एक में, बेस से भी एक्सपेंड करने का मतलब जरूरत नहीं पड़ता सर। हाँ हाँ वो भी एक्सपेंड करने का तो जरूरत नहीं यहाँ पड़ती। जैसे आप -2 कॉमन लिए है ना, हाँ हाँ तो वहाँ पे 2 कॉमन लेके उसके बाद प्रॉपर्टी लगाते कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करते कॉलम 1 हाँ की जगह पर, हाँ, तो तो उसमें सारा प्रॉपर्टी एलिमेंट कॉलम 1 का 0 हो 0 जाता। हो जाता तो फिर दूसरी प्रॉपर्टी पे चले जाते। यानी कि वही घूम फिर के हमें क्या करना है कि वही 8 प्रॉपर्टी का यूज करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हर केस में क्या होगा, आपकी जो प्रॉपर्टी का रिजल्ट 0 तो होगा नहीं भाई, हर डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 तो आएगा नहीं। जरूरी नहीं कि बार बार आइडेंटिकली बने, तो ऐसे केस में फिर हमें एक्सपेंड भी करना पड़ सकता है। तो एक्सपेंड जब हमें एक्सपेंड करना पड़ता है, अब ध्यान दें, जब हमको एक्सपेंड करना पड़ता है तब हम कहीं भी किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 प्लेस को 0 करते हैं, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे तो आसान हो जाता है, ये प्रॉपर्टी। ठीक है,
अब नेक्स्ट ये स्लाइड आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं और नेक्स्ट स्लाइड सर पे चलते सभी हैं। क्वेश्चन प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स के। क्या कहना चाह रहे हैं बेटे, मैं समझा नहीं आपने क्या क्वेश्चन किया। सर मतलब डिटर्मिनेंट्स के सभी क्वेश्चन में सर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन में नहीं, मैंने अभी आपसे क्या कहा, जब हमें दिख रहा है कि भाई ये आइडेंटिकल हम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रो या कॉलम को, तो हम क्या करेंगे, फिर R1 R2 R3 जो मैंने रो ऑपरेशन अभी आपको बताया, उन रोज ऑपरेशन से किन्हीं भी डिटर्मिनेंट में किन्हीं भी दो प्लेस वैल्यू को जीरो कर दो उनको ऑपरेट करते हुए ऑपरेशन के थ्रू। तो उसके बाद अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे ये है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। अब इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, अब आप देख सकते हैं आपने 12th में काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, बस केवल ओवरव्यू दे रहे हैं हम, जिससे कि आप प्रॉपर्टी से यूज टू हो जाएं। ठीक है, अगर हमें अपने क्वेश्चंस में करना पड़े तो अभी ऐसे क्वेश्चंस तो वहाँ नहीं करने हैं हमको। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज टू हो जाए, क्योंकि हम अब इसे यूज टू क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आप पढ़कर आए हैं तो इजीली जल्दी आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो जैसे अब आपने लिया कि इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट 1 1 A B C B प्लस C प्लस A प्लस B। देखिए अब आपको देखने से ही मालूम हो रहा है कि यदि हम, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन को देखते ही मालूम होता है कि हमें करना क्या होता है। अब A को मैं इसके साथ ऐड कर लूँ तो ये जो पूरा जो रिजल्ट है ये कंबाइंड रिजल्ट हो जाएगा और ये रिजल्ट सेम आएगा। देखिए जैसे मैंने इस कॉलम में लिखा, तो इससे क्या क्या प्रॉपर्टी में क्या हमें मालूम हुआ, इसमें हमें मालूम हुआ कि जो ये रिजल्ट है ये किस प्लेस पे आ रहा है। पहले तो ये चेक करें, सबसे पहला काम है हमारा कि ये किस प्लेस की वैल्यू है, तो इस प्लेस का नाम क्या है, C3 है। C3। हाँ, तो पहले हम ये जज कर लें कि भाई हम किस प्लेस पर हैं, तो जो हम हैं वो है C3 प्लेस पर, यानी कि हमको देखने को मिल रहा है कि C3 में हमें ऑपरेट करना है। तो ये हमने डिसाइड किया कि C3 को ऑपरेट करना है। अब देखिए यहाँ थोड़ा ये रिजल्ट, इसको लिख लें यहाँ C3 और इसको लिख लें यहाँ C2। अगर हम अपने रूल की बात करें तो हमने पहले क्या लिखा था कि जिस रिजल्ट को हम लिखते हैं उसको हम पहले लिख लें और उसके बाद C2 लिख लें, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अब देखिए यस सर। C3 अब हमने लिखा इसको C3 प्लस C2। अब देखिए चेंज तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ हमने कोई प्रोडक्ट वगैरह तो कुछ की नहीं है, तो हम इसे C2 भी और यहाँ प्लस C3 भी लिख लें। ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट वगैरह तो हो ही नहीं रही है, तो ऐसा भी हम करके इसको हमने किया, तो हमने इसे ऐड किया, तो हमने क्या देखा कि ये सभी प्लेस जो हैं सेम बन गए। सभी प्लेस कैसे हो गए, A प्लस B प्लस C और नीचे A प्लस B प्लस C, यानी कि पूरे कॉलम के हर एक एलिमेंट की वैल्यू सेम हो गई। क्लियर है? सभी प्लेस वैल्यू कैसी होगी आपकी, सेम हो गई। अब नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते हैं कि इस कॉलम में से सभी इसको A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लिया, यानी कि C3 में से हमने क्या किया, A प्लस B को कॉमन ले लिया। अब ऐसा करने से देखिए हमें क्या दिखा, 1 और 1। देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड करते, हम इसको दूसरे अगर फॉर्मेट से हम इसको निकालना चाहते तो इसको हम एक्सपेंड करते, तो एक्सपेंड करते तो हमें क्या करना होता है, इस 1 के नीचे देखिए इजीली हम 0 कर पा रहे हैं, 1 माइनस 1 0 कर लेते, फिर इसी 1 के नीचे इस प्लेस को भी 0 कर लेते, तो 2 जीरोज मिल जाती, तो हम इसे एक्सपेंडिंग फॉर्म से भी फाइंड आउट कर सकते थे, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता। क्लियर है कि नहीं? ऐसा हम करते तो उसमें जो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस रहते। अब इस फॉर्मेट से हमें क्या इजी हो गया कि हमने क्या काम किया कि इसमें से जब हमने कॉमन ले लिया, जब कॉमन लिया तो हमने क्या कॉमन लिया, C3 में कॉमन लिया A प्लस B प्लस C। तो ऐसा कॉमन लेने से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ, कॉमन हमने अभी प्रॉपर्टी में सीखा था कि वो हमने बाहर ले लिया और 1 1 1 1 1 1 आपके यानी कि C1 और C3 रिजल्ट में के बिल्कुल कैसे हो गए, आपके सेम हो गए। अब सेम होने पे मैंने बताया कि यदि दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो कौन कौन से रोज कॉलम आइडेंटिकल हुए, C1 और C3। तो C1 और C3 हमारे आइडेंटिकल हो गए, जिसकी वजह से जो ये पूरा डिटर्मिनेंट है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहले से कॉमन हमने ले रखा है A प्लस B प्लस C, दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो पूरे जो रिजल्ट का, पूरे क्वेश्चन का जो रिजल्ट है, यानी पूरे डिटर्मिनेंट का जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट हुआ, तो वो किसके इक्वल हुआ, 0 के इक्वल हुआ।
क्लियर है बच्चों सभी के? हेलो, यस सर। क्लियर हुआ सभी के? वेरी क्लियर। ठीक है, क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है सभी को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर बहुत ज्यादा है। तो हमको जो क्लास करनी है वो इंटरेस्ट के साथ करनी है और फर्स्ट टू लास्ट एज इट इज बने रहना है, जिससे कि हमारा एक हाँ म्यूट करें बेटे, म्यूट करें, मेरी बात सुनिए, म्यूट कीजिए। तो जो भी मैं क्वेश्चन बेटे म्यूट करिए बेटे, रुपेश भाई म्यूट कर ले। म्यूट करिए बेटे। म्यूट करिए खुद को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने तो जो आज क्वेश्चंस हमने किए, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके, कल हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपसे प्रैक्टिस कराएंगे, इवेल्युएट कराएंगे कल कि वही किस तरीके से क्वेश्चन इवेल्युएट होगा, क्योंकि अब तो आपका क्लास ओवर टाइम हो चुका है और नेक्स्ट टीचर आपका वेटिंग में है, तो अब मैं अटेंडेंस आप ले लेता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखें बेटे कि सभी को टाइम से ज्वाइन करना है और जब क्लास आपकी कंप्लीट हो जाए तभी लेफ्ट करना है। और मैंने आपको आज कॉल भी किया था, कितने स्टूडेंट्स इस तरीके से कर रहे हैं कि आज कर लिया, कल क्लास नहीं किया। तो इस तरीके से आपको क्लास में पूरी तरह से बने रहना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट आएगा जब आप, हाँ गुड मॉर्निंग बेटे। सर मैं आई एम मुस्कान। सर मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। चलिए, किसी का कोई रीज़न हो सकता है, बता भी सकता है, ठीक है। तो एक दो स्टूडेंट्स का ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, सभी की नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें और क्लास को टाइम से ज्वाइन करें। इस समय जो मेरे को स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, 58 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम मैं बोल देता हूँ, अरुण कुमार, या चलिए ठीक है मैडम वेटिंग में है, फिर क्लास लेट हो जाएगा तो मैं डाउनलोड ही कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड मैं आपके अटेंडेंस कर लेता हूँ। सर आपकी क्लास इंटरेस्टिंग रहती है कि गलती से भी मिस नहीं होगी? हाँ इंटरेस्टिंग रहती है, तो इंटरेस्टिंग क्लास तो वैसे भी मिस नहीं होती है और सभी क्लासेस आपकी इंटरेस्टेड होती हैं। और इंटरेस्ट तभी क्रिएट होता है कि जब आप रेगुलर होते हैं, हर एक स्टेप आपके समझ में आता है, तो आप जब उसको सीख पाते हैं तो इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है, और करने को भी आता है, ठीक है। ओके बेटे, तो सभी अपने क्लास को अब लीव करेंगे और 10 मिनट आपके पास हैं, आप फिर से रिफ्रेश होके अपने नेक्स्ट क्लास में बैठें, ठीक है बेटे। थैंक यू सर। ओके।